Hello everyone, this is CA Pratiksha Deshmukh. Today we will learn chapter 4 of CA Final Auditing, Special Aspects of Auditing in an Automated Environment. Okay, without wasting time in introduction, we will immediately start. Okay, your auditing is all about प्लानिंग. आप पहले प्लानिंग करते हो ऑडिट का, ठीक है. देन कम्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट होगा. एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन यू रीच टू द कंक्लूजन, दैट इज रिपोर्टिंग, और वी विल कॉल इट एज अ कंप्लीशन. ठीक है. सो दिस इज ऑल योर ब्रीफली ऑडिट इज. ठीक है, पहले प्लानिंग करोगे, फिर देन यू विल डू द एग्जीक्यूशन एंड देन रिपोर्टिंग एंड कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर वर्क यू हैव परफॉर्म. तो यहाँ पे आपका वर्क परफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यू विल डू ऑडिट प्रोसीजर्स एंड यू विल कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस. ठीक है. नाउ ऑन this audit procedures and audit evidences. By performing audit procedures, you will collect audit evidences, and on the basis of this audit evidences, you will form an opinion, you will give the report. Okay, so this is it all about auditing. Why I am explaining this? Because you need to understand how I am going to now interlink with the automated environment. This is core auditing. ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से एनवायरनमेंट में आपका ऑडिट कर रहे हो. ठीक है, आप मैन्युअली करो या फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में करो, दिस कोर ऑडिटिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. तो अभी क्या हो गया, अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आ गया. automated environment, nothing but use of computers and involvement of IT everywhere. This is what the automated environment is all. So business process है, आपके auditing है, और the way it was done earlierly, whether it's a business or whether it's a auditing, now it is done in the with the help of, यहाँ पे मतलब automated मतलब इसमें computers and IT, especially this is the word we use. So IT is involved, that's why it is called as automated environment. तो दिस थिंग विल नॉट चेंज ना. दिस इज द कोर. आपको प्लानिंग करनी है, आपको एग्जीक्यूशन करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, एंड यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंसेस. ओनली थिंग, द वे वी वर डूइंग इट अर्लियर, दिस इज हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट. ठीक है. सो हाउ दिस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट इम्पैक्ट और हाउ दिस थिंग अफेक्ट योर ऑडिटिंग, that's we are going to understand. Okay, तो प्लानिंग में आप क्या करते हो यहाँ पे, इन द प्लानिंग यू डू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, दैट इज योर essay 315. while doing this understanding, how you do it, while understanding na, you first conduct an client planning meeting. This meeting is with the client प्लानिंग मीटिंग. आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, और मीटिंग में यू आस्क देम रिलेटेड टू द बिजनेस, related to the risk involved, if it's going to affect the going concern, if there is a material misstatement, all those things you ask to the client. And what all the procedures you are going to perform, how it's going to be your nature, time and extent of auditing, those all things you nature timing and this nature timing and extent of auditing, this is all involved in planning also, in execution also. It will change डिपेंडिंग ऑन अ सिचुएशन. ठीक है. तो अब क्या हो गया, बिकॉज दिस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हैज़ गॉट इन्वॉल्व, पहले से रिस्क थे, बट नाउ सम स्पेशल रिस्क विच वी कॉल इट एज IT related risk. This IT related risk got evolved because of this automated environment. So now we have to perform some procedures to tackle with this IT related risk. ठीक है, ये बढ़ गए. तो while understanding the entity also, this risk part when will we do, we will also consider IT related risk. So we will also ask them about whether there are any IT related risk which client has identified.
Some of the risk client has already identified, some we will come across while performing our procedures. ठीक है. So how this is going to impact, and this automated environment now, this is at every stage, मतलब at planning, at execution and at reporting, at every stage. Wait, it's actually because of the same color now, maybe you are not getting it. I'll use the another color. I have not changed what. Okay, this thing, your automated environment, it will be at every stage, at planning also, at execution also, reporting not much but to some extent, how the reporting is done, actually how it was presented earlier and now how you will present now. So that's the only game, but the planning and execution it is going to affect. So at every stage how this automated environment is going to affect, means how the auditing will change at the planning stage and how it will change at the execution stage. ठीक है. So what we will do is we are going to learn this chapter into a 7 parts. The very first, I am not writing all the parts right now because I think it's surely wastage of time. We will go one by one. First thing is key features of an automated environment. I think you have understood this basic. यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इट्स वेरी बेसिक. आप प्लानिंग करते हो, फिर आप एग्जीक्यूट करते हो एंड यू डू द रिपोर्टिंग, एंड नाउ ऑल इन दिस फेजेस दिस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हैज़ गॉट इन्वॉल्व, एंड बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व आर ऑडिटिंग हैज़ चेंज टू सम एक्सटेंट. Core procedure of auditing will not change, but way we were doing it, that has changed. So for that we are understanding the chapter, and the very first thing we are going to understand it, what are the key features of automated environment. Okay, one thing, for this chapter I have not prepared any notes separately, because I was going through your study material. It's hardly 25 pages, and if we exclude question and answer and diagrams, it becomes 15 pages. So if I give you the notes in the layman language, and that will also not help now, because your institute expect you to write the technical words which are there. Okay, so key features of an ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो पहले समझ लो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या है. ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है. दिस इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है. दिस इज, यहाँ पे क्या होंगे, पीपल, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब इट्स इकोसिस्टम. Automated environment is a ecosystem that combines this people, procedure and technology within business environment. तो ये है आपका ऑटोमेटेड. तो ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट वॉज देयर, बट द सिस्टम विच कंबाइंस दिस थ्री, पीपल आर गोना perform procedures with the help of technology. That's why it becomes automated environment. Okay, तो मतलब क्या, in a simple language, doing the business by using business applications. पहले मैन्युअली होता था, नाउ विद द हेल्प ऑफ IT होता है. दैट सिंपल, ठीक है. तो व्हाट्स हैपनिंग. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एप्लीकेशंस. तो यूजिंग द बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स है आपका टैली, योर ERP सिस्टम, ठीक है. और सम ओके, आपके स्टडी मैट में ना ये वर्ड है ओरेकल 12G. देखो ओरेकल है ना, ये कंपनी का नाम है, एंड 12G इट्स देयर प्रोडक्ट. इट्स एक्चुअली अ डेटाबेस. डेटाबेस क्या है, दैट यू नो, दोज हु हैव डन द IT नो, जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन है आपकी
जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है दैट इज़ डेटाबेस. ठीक है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जहाँ पे रहती है दैट इज़ डेटाबेस. तो दीज ऑल आर द बिजनेस एप्लीकेशंस विच नाउ डेज बिजनेसेस आर यूजिंग. नाउ ये बिजनेस एप्लीकेशंस में लेयर्स इन्वॉल्व है. क्या होता है ना, इफ व्हेन यू डू दिस चैप्टर ऑन योर ओन and you see these words, the person like me who don't like IT at all, they get afraid of or they get bored after some time. Doing this chapter on your own, it's really very very boring. We need someone to explain us. Okay, तो layers involved. तो layers involved क्या क्या है business applications में. Very first is your physical layer. ठीक है, physical layer मतलब दिस विल बी योर लास्ट. ओके, यहाँ से हम अंदर आई विल ड्रॉ. ओके, सर्कल इज नॉट प्रॉपर, दैट्स ओके. सो दिस इज योर फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर मतलब इसमें क्या आएगा आपका लैपटॉप, योर कंप्यूटर थ्रू विच यू आर गोइंग टू एक्सेस द सिस्टम. ओके, CCTV, all these things are comes into physical layer. Then network through which you will connect टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, योर बिजनेस एप्लीकेशंस को आप जिससे कनेक्ट होते हो दैट इज़ नेटवर्क. नेटवर्क मतलब इट कैन बी लैन, इट कैन बी वैन. ठीक है, नेटवर्क के बाद आपका बिजनेस एप्लीकेशंस जिस पे आपको मेन काम करना है, जिसे हम एक्चुअली अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोल रहे हैं. तो बिजनेस एप्लीकेशंस, अब ये बिजनेस एप्लीकेशंस रन होने के लिए यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. what can be the example of operating system? Linux. ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशन मतलब जो आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, दिस टैली एंड ऑल. ERP systems, ERP system are different depending on the business, what I can say, size and the complexity. They are developed one, they are packaged one. Operating system, and there comes your database. So I have already as mentioned this Oracle 12g. One I want to mention over here, this Oracle 12g, I searched for this but I couldn't find it. ये अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही दिखता है. When you surf on the internet you will get the 12c. I don't want to go into deep into this because this is not area. So as 12g is given, you have to write in exam 12g, Oracle 12g as an example of database. That's it. We are not going to, we are not here like to read that or to study that. So just leave it over here. So these all the this is what automated environment is, and this is what the layers involved in the business applications, or we can say the layers of the automated environment. The next thing which can come as a separate question, that is what does involved in understanding and documenting automated environment. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. अभी यहाँ पे आपका आप ऑडिट करने गए एंड वहाँ पे यू नो दे आर यूजिंग सम ऑटोमेटेड, सब IT बेस्ड है उनका. वो ठीक है, तो एवरीवेयर IT कंट्रोल्स, IT मतलब सिस्टम इज इन्वॉल्व. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एज पर ऐसे 315 you will perform at the initial stage of auditing. So what you will understand in that understanding, and what you will understand and what you will document. Documentation part is your essay 230. Your essay 230 wants you to document, and your 315 wants you to understand the entity. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे what all the applications that are being used. ठीक है, so I am writing it very short, applications being used. Okay, as I have not given you the notes, I want you to refer directly a study material while watching this video also. Now if you will find it as the exact words over there. So this will make this learning simple for you. So आपका पूरा स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा, और आपके वही वर्ड्स, जो वर्ड्स आप अभी सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, दैट यू विल write in the exam and you will get the marks. If now I use the layman language, and
that will make concept simple for you, maybe more than this, but that is not going to what I can say, that is not help to fetch the marks. ठीक है. So second point you will understand is details of IT infrastructure component. मतलब क्या? IT infrastructure component मतलब this, what is physical layer, which is network, business application, operating system कौन सा है, database कौन सा है. तो this is only. ठीक है. एप्लीकेशन कौन सा यूज़ हो रहा है वो डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, हार्डवेयर क्या है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एवरीथिंग. यस. Then you will understand organization structure. Why organization structure and governance? Because depending on the position, जो आपके कंट्रोल्स में जो आपको एक्सेस मिलता है, that depends on the position of the person. The department in which you are working, that department will have only access to the those areas related to that department's work. The person working in sales will not get access to the entire data. Like as we go up and up in the layers, MD will be having access to everything. So like that. ठीक है. So policies, procedures and processes followed. ये जो पार्ट है ना, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, ये आपके आप ये अंडरस्टैंड करते हो टू टेस्ट द कंट्रोल. ये TOC में आपको डिटेल में देखना है. व्हेन आई विल अपलोड द essay 315, देयर आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी व्हाट आई कैन से डीप. ओके. एंड IT रिस्क एंड कंट्रोल. तो आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है. आपको देखना है कि विच ऑल द एप्लीकेशंस आर बीइंग यूज्ड. ओके. यू नीड टू गेट द डिटेल्स ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लेयर एट विच यू आर वर्किंग, द एक्सेस प्रोवाइडेड टू द दैट फेलो, दैट पर्सन विल वेरी. देन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, रिटन पॉलिसीज होनी चाहिए ना. एम्प्लॉयज हाउ दे विल नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट ऑल आर द policies to be what we can say followed. And IT risk and control, here also you are asking them na, risk involved, what are IT related risk you have identified. So those we will ask them, we will understand what all are involved and we will accordingly record it. ठीक है. तो ये हम यहाँ पे करेंगे. उसके बाद आता है वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके RTP में भी है. एंड द नेक्स्ट वन, ये दिस वाज आस्क्ड इन द वन ऑफ द एग्जाम ऑल्सो. ठीक है. तो क्या है, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, अदरवाइज बाकी कोई कॉन्सेप्ट इतनी लेंदी नहीं है ये चैप्टर ये क्वेश्चन जितनी. At each phase of audit cycle. Okay, so consideration of automated environment at each phase of audit cycle. मतलब आपके कौन से फेज हमने यहाँ पे देखा ना, ऑडिट इज ऑल अबाउट क्या है ये, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, कंप्लीशन. तो ये आपके फेजेस है ऑडिटिंग के. ठीक है. तो आपकी लेट्स चेंज द पेन. ठीक है. तो जैसा हमने देखा आपकी फेजेस क्या है, प्लानिंग है. इट विल इन्वॉल्व 2 थिंग्स. फर्स्ट, रिस्क असेसमेंट. आप प्लानिंग के टाइम पे ही रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. आई विल टेक यू देयर अगेन एंड अगेन. यहाँ पे प्लानिंग में ही है ना आपके, ये देखो प्लानिंग में ही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी आता है. अंडरस्टैंडिंग में ही तो यू आर डूइंग द रिस्क असेसमेंट, व्हाट ऑल रिस्क आर इन्वॉल्व. ठीक है. तो प्लानिंग में आप करोगे रिस्क असेसमेंट. एंड सेकेंड थिंग, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल इवेल्युएट सर्टन थिंग्स. ठीक है. वो क्या है, आई एम गोना राइट इट. ठीक है. प्लानिंग आपका हो गया, ये 2 चीज़ें आपने कर ली. सो दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ओके. तो जो IT रिस्क
या फिर जो रिस्क रिलेटेड टू IT, बिकॉज रिलेटेड टू दिस ऑटोमेटेड बिकॉज वी आर ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा रिस्क होने वाली है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, ये प्लानिंग, ये एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने रिस्क असेसमेंट कर ली, कौन सी रिस्क है, नोट यू हैव लिस्टेड डाउन, ओके, यू हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ यू विल टेस्ट हियर। एग्जीक्यूट मतलब यू विल टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, it is TOC. Those who are working with the big fours and the big audit firms will understand this concept TOC, because they do it, they actually perform everything. Then comes your reporting, क्योंकि बड़े ऑडिट ही उनके पास होते हैं तो उनको ही पता है ये TOC ये सब करना होता है. I have not seen any mid-size firm or the small firm performing so many activities, because they don't want to involve, because returns are not that much ना, so cost benefit also have to look after. So reporting में क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग ही होगी we will, okay, ये रिपोर्टिंग. Okay, so पहले what we are studying is consideration of automated environment at each phase of audit cycle. तो ये आपके audit cycle के phases है, planning, execution and reporting. So at each phase we are now understanding how automated environment is considered. Okay, ठीक है. तो पहले आप रिस्क असेसमेंट करोगे, तो नाउ यू विल लुक आफ्टर द रिस्क विच आर रिलेटेड टू द ऑटोमेटेड. फॉर दैट रिस्क असेसमेंट में हम क्या क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रिस्क कहाँ पे हो सकती है जो सिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो यू विल फर्स्ट फाइंड आउट विच आर द सिग्निफिकेंट अकाउंट्स and which are the significant disclosures. ठीक है, then you will understand what is qualitative and quantitative aspects. qualitative and quantitative aspect, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, अभी ये था देखो. quantitative will be with respect to accounts, amounts से आएगा, and qualitative will be with respect to your disclosures. Okay, then you will understand which are the relevant FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस. ठीक है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस मतलब क्या होता है, आप सिग्निफिकेंट अकाउंट ढूंढ लिया आपने. यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ. लेट से आपके हिसाब से सिग्निफिकेंट अकाउंट आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट. ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट सिग्निफिकेंट. अब इसके रिलेटेड FSA मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके रिलेटेड जो लेजर से, तो यहाँ पे आपका पेरोल का कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, लेट से ग्रेचुटी की प्रोविज़न आ जाएगी, ऑल रिलेटेड टू दिस. या फिर आपके यहाँ पे अगर लीव इनकैशमेंट की प्रोविज़न बने, ऑल FSAs रिलेटेड टू मीन्स ऑल रिलेटेड लेजर्स टू दिस. ठीक है, तो यू विल रिस्क असेसमेंट कर रहे, तो इसमें रिस्क असेसमेंट में यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंट्स क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, रिलेवेंट. अभी ये पता चला ना ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके रिलेटेड FSAs कौन से, बिकॉज दोज FSAs यू विल चेक. देन आप देखोगे सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी, इवेंट या ट्रांजैक्शन है वो अकर होने के बाद वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसको हम बोल रहे हैं सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है. एंड देन यू विल चेक व्हाट आर चैप्टर इज ऑल अबाउट, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ IT, फ्रॉम यूज ऑफ IT. ये भी हो सकता है जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द IT, सम अकाउंट्स आर maybe there is some deficiency in control or deficiency in the system, जो IT related risk है कि कोई अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, या फिर टू डबल इफेक्ट्स जा रहे हैं, एनीथिंग. और या फिर सम पीपल आर जस्ट मेकिंग एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट फॉर द लू फॉल्स इफ इट्स देयर इन द सिस्टम. ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट में दिस पॉइंट्स आर कवर, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट. What you will understand and what you will evaluate. For that you need to document what understanding of entity. Okay, I am writing it short form. तो यहाँ पे या प्लस द बिजनेस प्रोसेसेस आपने समझ लिया. आपको दो चीज़ें देखनी है, रिस्क कहाँ पे है एंड दिस चीज़, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू थिंग्स यू विल टेस्ट इट, यू विल गो टू द नेक्स्ट फेज. ठीक है,
देन यू विल प्रिपेयर रिस्क मैट्रिक्स. देखो रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, अंडरस्टैंड. RCM, एवरीवन कॉल इट RCM बोलते हैं हम. रिस्क मैट्रिक्स मतलब हियर यू लिस्ट आउट ना ऑल पॉसिबल रिस्क, जितने पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं. एंड देन वी चेक वेदर एनी वन ऑफ देन लाइक वॉट एवर वी हैव लिस्टेड आउट, वेदर एनी वन ऑफ द रिस्क एग्जिस्ट और हैज़ अकर्ड अर्लियर, मतलब सॉरी हैज़ अकर्ड ऑलरेडी. ठीक है. देन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यू नीड टू चेक. ठीक है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्यों चेक करेंगे, देखो सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन जो आपके पास ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, एंड द फाइनेंस वाला बंदा हु लुक्स आफ्टर आउटस्टैंडिंग शुड नॉट बी द सेम. ये ऑर्डर लेके आया और जो आउटस्टैंडिंग, तो हियर ही कैन make the frauds na, so that's why there should be segregation of duties. So you need to understand who is responsible for this and who is responsible for this. So on the basis of that you will get to know कि अगर ऐसे भी है तो कहीं पे ये एरियाज का एक्सेस इसे है क्या नहीं, या फिर सेल्स के एरियाज का एक्सेस whether this person has or not, that you can check. So for that you need to understand the segregation of duties. And again IT related controls, generally controls तो होंगे ही to make sure that there is not material misstatement, risk of material misstatement, ये चीज़ ना हो, इसके लिए already controls तो होंगे. but because of use of IT some IT related risk हो सकते हैं, तो that's why some ऐसे कुछ controls है क्या to tackle with this. ठीक है. तो ये हो गई आपकी प्लानिंग. ओके, यू हैव डन द रिस्क असेसमेंट, यू हैव अंडरस्टैंड ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स. नाउ यू विल टेस्ट फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. ना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट विल बी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग. ठीक है. अगर आप कंट्रोल टेस्ट करने वाले, अभी आपको पता चला कि ये अच्छा दिस 1, 2 and 3 are significant account. Okay, in this significant account these are the procedures. Now I will test it. So for performing I need to decide on based on my professional judgment what will be the nature of procedures, how much time we want to put in that, and extent to which we want to do the checking. So that we will decide. Okay, then we will also need to decide about the रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, जिसके बेसिस पे आप टेस्टिंग करने वाले हो, जिस डेटा पे आप परफॉर्म. सोर्स डेटा मीन्स आपको जो SAP के डंप आते हैं या फिर रिपोर्ट्स जो आएंगे आपको, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर टेस्ट, या फिर कोई सिस्टम का रिपोर्ट, तो वेदर दैट इज़ रिलायबल और नॉट. ठीक है. देन यू विल टेस्ट ऑफ की रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जो भी निकलती है वो, that we can call it, this is the example, exception report is, that's not the only key report, but I'm just giving it as an example. Then sample testing also you have to do, and sample testing you need to decide na which are the samples to be. Now sample testing that also depends on the professional judgment, because अगर कंपनी में 2000 सेल्स के ट्रांजेक्शन है, then you cannot check the whether all the controls are followed for this 2000 which are where IT environment is involved. So that's why we are checking. So we will not, we will do the sample, and the sampling will be done on the basis of professional judgment. ठीक है. Then next will competence of the person who is going to perform it. उसको पता ही नहीं है TOC क्या है, and or he is not at all, what we can say, he never had the access to the systems before, or independent, what I'm doing is, okay, competence plus independence. Okay, wait, now I dropped this, I wrote something wrong or what. We need to check the competence and independence of person, independence of staff who are going to perform the test. Okay, performing control test, so that we need to understand.
ओके आपने प्लानिंग कर लिया, उसमें आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया, मतलब कौन से एरियाज में रिस्क है आपने ढूंढ लिया. यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द प्रोसीजर विच आर फॉलोड टू टैकल विद दिस और टू अवॉइड द रिस्क. एंड एक्चुअली वो प्रोसीजर फॉलो होती है क्या नहीं, एक्चुअली वेदर दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर एग्जीक्यूटेड और नॉट, दैट वी आर चेकिंग हियर, दैट इज बाय टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. एंड नाउ दिस रिपोर्टिंग पार्ट. नाउ इससे आपका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, दिस रिजल्ट यू विल रिपोर्ट. ओके दिस रिपोर्टिंग आई एम राइटिंग हियर, दैट्स व्हाई आई गेव द स्टार मार्क ओवर देयर. ठीक है, रिपोर्टिंग. नाउ रिपोर्टिंग में क्या होता है, इवैल्यूएट कंट्रोल डेफिशिएंसी. राइट अगेन हियर, रिपोर्टिंग वी आर डूइंग नाउ. रिपोर्टिंग में यू विल इवैल्यूएट कंट्रोल डेफिशिएंसी. आप देखोगे कि कौन से एरिया में कंट्रोल्स डेफिशिएंट है और कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. ठीक है, एंड मटेरियल वीकनेस है तो you will also check whether there is material weakness. Then what is the, if it's a material if material weakness is there, then you will suggest some remedial actions. ठीक है, so remedial course for weakness you will suggest. You obtain management letter about this as a part of reporting. ठीक है, and you will गिव द ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब अगर आपके जो भी कंट्रोल की टेस्टिंग की रिलेटेड टू द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, इसलिए आपने कुछ स्पेशल टेस्टिंग किया और उसका रिजल्ट में आपको डेफिशिएंसी है, तो दैट ऑल्सो यू मेंशन इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट, दिस key features of an automated environment. 7 parts are there but every part is not this big. ये पहला वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है. तो ये की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आपने समझ लिया. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब ये पीपल, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड टुगेदर, वी कॉल दिस एट अ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है, फिर बिजनेस एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसमें क्या लेयर्स है, दीज लेयर्स ऑल्सो कॉल्ड एज IT infrastructure. Then we have seen this understanding and documenting the automated environment. तो उसमें आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, डॉक्यूमेंट करना है. ठीक है, then consideration of automated environment at each phase of audit cycle. This I will mark as a important. इस पे क्वेश्चन आ चुका है और वापस आ भी सकता है. ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज. तो प्लानिंग फेज पे आप क्या करोगे, एग्जीक्यूशन फेज पे क्या करोगे, एंड रिपोर्टिंग मतलब जो डेफिशिएंसी अगर है, कंट्रोल में वीकनेस है एंड फिर उसको टैकल करने के लिए कुछ रेमेडियल एक्शन है, तो दैट यू विल गिव. सो दिस वाज एंड ऑफ योर फर्स्ट पार्ट. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, क्विकली वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट, दैट इज रियल टाइम एनवायरनमेंट. रियल टाइम एनवायरनमेंट. नाउ रियल टाइम एनवायरनमेंट मतलब क्या, सच अ एनवायरनमेंट वेयर इफ यूर ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, इफ दिस ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड एंड recorded as and when they happen, recorded immediately as and when they happen. ये ट्रांजैक्शन है, अगर आप वो इनिशिएट, प्रोसेस एंड रिकॉर्ड हो रहे एज एंड व्हेन दे हैपन, तो इमीडिएटली अगर हो रहा है तो वी कॉल इट एज अ रियल टाइम एनवायरनमेंट. द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर कैश विड्रॉवल फ्रॉम ATM. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी ई-कॉमर्स, अमेजोन, मिंत्रा, जहाँ पे आप शॉपिंग करते हो. ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, विड्रॉवल ऑफ फ्रॉम ATM. कैसे होता है, आप ATM से, जब ये ATM का मशीन है इमेजिन ना, तो आप यहाँ पे कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हो, ये आपका कार्ड है, तो पैसे बाद में मिलते हैं, आपके मोबाइल पे डेबिट का मैसेज पहले आ जाता है. दिस हैपन्स
many a times. मतलब क्या हुआ, when you go to the ATM and you insert your card, you have initiated the transaction. ठीक है, आपको कैश मिल गई, दैट इज़ योर प्रोसेस. ठीक है, आपके अकाउंट में डेबिट हो गया, दैट इज़ रिकॉर्डिंग. तो उसके लिए टाइम लगता है क्या? आज मैंने एटीएम में कार्ड में अभी कार्ड वहाँ पे इंसर्ट करके आया, टुमारो आई विल कलेक्ट द कैश एंड डे आफ्टर टुमारो माई अकाउंट विल गेट डेबिटेड. नो, दिस नॉट हैपन. दिस हैपन्स एज एन वे यू डू इट. एज आई ऑलरेडी सेड, आपके कैश बाहर पहले बाद में आती है, अकाउंट को डेबिट पहले आ जाता है, आपको मैसेज आ जाता है पहले. ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, मिडलवेयर होता है. In our example, middleware is ATM. Network, most important. Without network, how you are going to operate it? And hardware, storage system, your database, your storage, your power, without which it cannot work. These are the example. Network, as I already said, it can be LAN, it can be WAN. ठीक है. Middleware in the given example, ATM is the example. वेब सर्वर्स, आप ई कॉमर्स पे कोई शॉपिंग करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो दिस ई वेब सर्वर्स आर इन्वॉल्व. एंड देन एप्लीकेशंस, मतलब बैंक का एग्जांपल ले रहे तो CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, या फिर ERP, SAP, ई कॉमर्स के केस में दिस कैन बी द एग्जांपल. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स of this real time environment? These are the components. So if question comes, you will answer this: application, middleware. Just give the example of this ATM transaction and elaborate it with these words. ठीक है. Today we will stop here. The later part of this chapter, I have out of 7 I said, out of 7, 2 I have already explained, 5 are pending. Those 5 are not so big, so it won't take time. Actually my plan was to upload the all standards first, all the your essays. I have uploaded already 200 and 210. Today actually I was supposed to upload the next one, 220, but one of the student has requested for this chapter, so I am just uploading this chapter. Okay, understand, I will upload this chapter as a part 1 and part 2, yes, very soon. I will upload the part 2 wherein I will cover the whatever remaining part of this chapter. Okay, thank you. I hope you have understood.